اور اس کی پہلی 2 آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ جی مہربانی سے ایک آواز ہو کر خدا کے کلام کو پڑھ دیجیے۔ وہ یرون کا ہو کر رہا تھا اور دیکھو زکریا نام ایک آدمی تھا جو مسیح لینے والوں پر سوار اور دولت مند تھا۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کے اس عظیم حصے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر۔ تشریف رکھیں۔ مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام کا آج مطالعہ کریں گے، وہ مضمون ہے یور فائنینشل سکسیس۔ یور فائنینشل سکسیس، آپ کی مالی کامیابی یا آپ کی مادی ترقی۔ اگر میں اور آپ روپے پیسے کے طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور مادی طور پر استحکام چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، کثرت چاہتے ہیں، تو پھر آج کے اس بیان میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ اتریے گا۔ لوکا کی انجیل کے 19ویں باب میں زکائی کا بیان پایا جاتا۔ یرو کا رہنے والا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم جیریکو کی بات کرتے ہیں، یرو کی بات کرتے ہیں، تو اسے سٹی آف کرس کہا جاتا ہے۔ ایسی سٹی، ایسا شہر جسے لعنتی شہر کہا گیا ہے، اور یہ لعنت یشوع کی کتاب کے 6 باب کی 26ویں آیت میں خود خدا کی طرف سے اس شہر پر کی گئی۔ مہربانی سے 6 باب کی 26ویں آیت کو ضرور دیکھیے گا۔ وہاں حکماً یہ کہا گیا ہے کہ اس گرے ہوئے شہر کو پھر کوئی بنانے نہ پائے۔ اچھا، بہت سے شہر، بہت سے علاقے، بہت سے ایریاز ایسے ہوتے ہیں جو بچوں بلیسڈ نہیں ہوتے۔ کئی بار کچھ ایسے شہر بھی ہیں جو ہمیں انسانی طور پر بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے گرین لگتے ہیں، سرسبز و شاداب لگتے ہیں، لیکن اصل میں وہاں قرض ہوتا ہے، لعنت ہوتی ہے۔ جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں سدوم اور عمورہ چل رہا۔ دکھنے کو بڑا ہی بلیسڈ ہے، بڑا ہی گرین ہے، لیکن لعنتی شہر ہے، لعنتی شہر ہے۔ اور اس لعنت کا اثر ہم نے وہاں جا کر دیکھا ہے کہ آج کے دن تک قائم ہے، اس لیے وہاں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہی وہ شہر ہے جہاں خدا نے سب سے پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، آگ اور گندک برسایا۔ اور جب آپ ڈیڈ سی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو چکر آتے ہیں، کیونکہ اس قرض کا، اس لعنت کا اثر آشر آج تک وہاں موجود ہے۔ میں خود اس کا تجربہ کر کے آیا۔ کچھ شہر جو ہیں وہ لعنتی ہوتے ہیں، کچھ علاقے لعنتی ہوتے ہیں، اور مجھے کہنے دیں کچھ گھر بھی لعنتی ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گلف میں رہتے ہوئے جب آپ کسی بھی گھر میں شفٹ ہوں، کسی بھی روم میں شفٹ ہوں، تو اس سے پہلے کم از کم مجھے ضرور بلا لیں۔ ان دنوں اگر میں نہیں آ پاتا، آن لائن مجھے لے لیں، اپنے گھر کو واٹر بیپٹائزڈ کروائیں، تاکہ وہ تمام طرح کی کثافتوں سے، لعنتوں سے پاک ہو، اور اس کے بعد آپ وہاں رہنا شروع کریں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ وہاں آپ سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے۔ ممکن ہے کسی طرح کی کوئی پوجا پاٹ ہوتی ہو۔ بہت سے گھر، بہت سے ایریا، بہت سی کنٹریز جو ہیں وہ ہمیں بلیسڈ دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہوتی نہیں۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جس بندے کے پاس ذرا روپیہ پیسہ ہو
जिसका घर बड़ा सा हो, जिसकी गाड़ी बड़ी सी हो, जिसकी बीवी और बच्चे बड़े डेवलप हों, हम समझते हैं कि ये शख्स ब्लेस्ड है। ज़कई के बारे में आप इस तनाजुर में सोचकर क्या कहेंगे? तो मुझे कहने दें, क्या ये शख्स ब्लेस्ड था? क्या ये शख्स ब्लेस्ड था? ब्लेसिंग के लिए तो ये तड़पता फिर रहा था और दौड़कर बच्चे की तरह गूलर के पेड़ पर चढ़ गया था, क्योंकि वो महसूस करता था कि उसकी जिंदगी में कमी है, उसकी जिंदगी में सेटिस्फेक्शन नहीं है। मत ख्याल करें कि ये जिन घरों के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, जिनके पास बड़ा और चोखा सा पैसा है, बैंक बैलेंस है, तिजोरियां भरी हुई हैं, गाड़ियां भरी हुई हैं, मत ख्याल करें कि वो ब्लेस्ड भी हैं। मुमकिन है कि सब कुछ हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो बिल्कुल खाली हैं। और ये एक स्टेप आगे बढ़े। शाहनवाज, जब मैं खुदा के कलाम के इस हिस्से की तैयारी कर रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा था कि मैं और आप एक लानती दुनिया में सांस ले रहे हैं। मैं और आप एक लानती दुनिया में सांस ले रहे हैं, जिसके बारे में अदन में यह कह दिया गया कि ये तुझे 100% नहीं देगी, जिसके बारे में आदम और उसकी बीवी को कह दिया गया कि ये जमीन अब तुम्हारे सबब से लानती हुई, अब ये कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। अच्छा, एक मौका आया कि खुदा ने सफाई भी की, क्लिंजिंग का काम भी किया, फैशन खुशल भी किया है नूह के दौर में कि चलो थोड़े से खूबसूरत हो जाएं, फिर इनकी वही शेप आ जाए। लेकिन जानते हैं कि फिर लोगों ने अपने आप को इतना बिगाड़ दिया कि आज हम अपना मुंह छुपाए फिर रहे हैं। ये लानत जो है वो किसी ना किसी तौर पर, माजरत के साथ कहूंगा, कि हमारे साथ चिमटी हुई है और हमारी जान नहीं छोड़ रही। लेकिन इस लानत से आजाद होने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ प्लग होना पड़ेगा। खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुसलसल रिलेशन में रहना पड़ेगा। जब आप पानी की नदियों के पास लगाए जाएंगे, जब आबे हयात के चश्मे में आप लगाए जाएंगे, तो फिर आप फलदार होंगे और आपका फल कायम भी रहेगा। फिर आपकी जिंदगी में सचमुच कसरत होगी, बरकत होगी। फिर आपके पास दुनियावी तौर पर कुछ भी शायद नहीं होगा, लेकिन आप यूं फील करवा रहे होंगे कि मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूं, इसलिए कि मेरा यस्सु मेरे साथ और मेरे अंदर है। ज़काई जो है वो निजात की बरकत से खाली है, निजात की रागनी से, इस खुशी से खाली। दुनियावी तौर पर दुनियावी चीजों में जकड़ा हुआ है, रुपया पैसा भी है, पोजीशन भी है, नाम भी है, फेम भी है, बड़ी अच्छी पोस्ट भी है, बड़ी अच्छी पोस्ट भी है, लेकिन अभी तक इसकी जिंदगी में बरकत नहीं है। और वो महसूस करता है कि बरकत के लिए उसे यस्सु के साथ सिर्फ एक मुलाकात की जरूरत है। एक मुलाकात जरूरी है अभी, समझ गए? एक मुलाकात जरूरी है अभी। अगर आज तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, इसलिए कि खुदावंद के साथ इनकाउंटर होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, हम चर्च क्यों आते हैं? टाइम पास करने के लिए, फेलोशिप के लिए। अच्छा, जब लोग ये लफ्ज बोलते हैं ना, मुझे बड़ी चिढ़ आती है इस लफ्ज से। किस तरह की फेलोशिप? लोगों के नाम, ये सब तो पहले खुदा देना। आप लोगों को मिलने के लिए आते हैं, मैं यहां लोगों को खुश करने के लिए आता हूं, मैं यहां लोगों को मिलने के लिए आता हूं।
नहीं, सबसे पहले मैं अपने रब खुदावन से मिलने के लिए आता हूं, और अगर वो यहाँ पर मौजूद नहीं होता और उसके होने से, उसके रिलेशन में होते हुए मेरी आज की इबादत मुझे एक लेवल ऊपर नहीं लेकर जाती, तो फिर ये सारी की सारी मेहनत फजूल और बेकार है। एवं पेट्रोल लाया, एवं तबीयत खराब हुई है, इन्हीं कोशिश की थी। अगर हम खुदावन के पास आते हैं, खुदावन के घर में भाई इमैनुएल, और उसके साथ मोहब्बत में, प्यार में एक लेवल ऊपर नहीं जाते, क्या फायदा भाई? लोग जब अपने प्यारों से मिलने के लिए जाते हैं और जब मिलने के बाद वापस निकलते हैं, ओए होए, लोग इतने खुश होते हैं कि हद नहीं। काश के ये ज़बूर 2 बार हम गाया करें। मैं खुश होया जब मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, तो मैं उदों भी खुश होया जदों मैं खुदा दे घरों बाहर निकलिया। मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे कि आओ खुदावन के घर चले। क्या करने? खुदा से मुलाकात करने, खुदा से प्लग होने, अपनी डेड बैटरियों को चार्ज करने। और अगर फिर यहां से डेड के डेड ही चले गए तो फिर क्या फायदा? ज़काई ने भांप लिया, मौका बड़ा अच्छा है। इसलिए भाई साथियों, मैंने कहा कि आज मौका बड़ा अच्छा था, काश पे ये तमाम चेयर्स भरी होती। बड़ा अच्छा मौका था, बड़ा अच्छा मौका था। चलें एक पॉइंट और आगे बढ़ते। जब हम खुदावन के साथ मुलाकात कर लेते हैं तो याद रखें कि हम बड़े फराख दिल हो जाते हैं, बड़े ही फराख दिल। हमारा दिल खुल जाता है, इतना खुल जाता है कि फिर हम कहते हैं, देख खुदावंद, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता। अच्छा, देते कौन है? देना किनको आता है? नोट कर ले भाई, जिनका यीशु के साथ इनकाउंटर हुआ होता है। जिनका यीशु के साथ इनकाउंटर ही नहीं हुआ, उन्होंने देना क्या है? जब हम यीशु के साथ मिल जाते हैं तो ये कहानी हमें सिखाती है कि ये इनकाउंटर हमें बड़े दिल का बना देता है। हम खुदा के फसल का तजर्बा हासिल करते हैं और फिर उसी फसल की बदौलत हम चीजों को हैंडल करने लगते हैं। देख खुदावन, अगर मैंने किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसे चौगुना अदा करता। मैं जब कलाम के इस हिस्से की तलावत कर रहा था, इस पर गौर कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि ज़कई जो है ना, वाकई बड़ा जीनियस बंदा है। इनकाउंटर तो यीशु के साथ उसका हो गया है, अब वो खुदावन से सिर्फ ब्लेसिंग नहीं चाहता, डबल ब्लेसिंग चाहता है। और डबल ब्लेसिंग के लिए वो ऐलान करता है, आधा माल तो सीधा सीधा गया, और उसके बाद अगर मैंने किसी का कुछ नाहक लिया है तो मैं चौगुना अदा करता। अच्छा, लोग ले लेते हैं फिर वापस करते ही नहीं। मुझे और भाई साथियों को तो बड़ा ही तजर्बा है, इतना तजर्बा है हमें कि हद नहीं। इन 16 महीनों के दौरान वादा किया, वापस नहीं किया। तीसरी बात, जब हमारा खुदा के साथ, खुदावंद यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हो जाता है तो फिर हम प्रैक्टिकल विजडम का तजर्बा करने लगते हैं। प्रैक्टिकल विजडम क्या कहती है? खुदावंद यीशु मसीह ने मुखातिब होकर इससे कहा कि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। क्या लिखा है? प्रैक्टिकल विजडम। अब सुने, वो खुशी खुशी यीशु को अपने घर ले गया। ये प्रैक्टिकल विजडम की बात है। मतलब क्या है? लो, इससे अच्छा और मौका क्या होगा? फायदा उठा लो। और वो खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ ले गया। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ इनकाउंटर हो जाते हैं तो फिर हम नोबल हो जाते हैं। नोबल का उर्दू तर्जुमा है नामी ग्रामी हो जाते हैं। आज पूरी दुनिया ज़काई को जानती है। टैक्स कलेक्टर तो बाजी उस वक्त भी थे और पता नहीं कितने थे, लेकिन ये टैक्स कलेक्टर जो है ये नामी ग्रामी हो गया, नोबल हो गया।
अगली बात, जब हम खुदावंद के साथ इनकाउंटर हो जाते हैं तो फिर न सिर्फ हम खुद बल्कि अपने खानदान समेत निजात का तजर्बा हासिल करते हैं। यीशु ने क्या कहा, आज इस घर में ज़कई तेरी जिंदगी में नहीं, आज इस घर में, इस पूरे कुंबे में, इस पूरी फैमिली में निजात आई है। जिस पकड़ और जिस जकड़ में तुम थे आजाद हो गए, अब बरकत होगी, ज़कई अब कसरत होगी, और इस बरकत और कसरत को कोई रोक नहीं सकेगा। एक आखिरी बात कहकर मैं खत्म कर दूं, यकीनी तौर पर हमें खुदा ने रुपए पैसे की बरकत दी है और हम उसका शुक्रिया अदा भी करते हैं, और जितना करें कम है। अगर कहीं ज़हन में जरा सा भी ये ख्याल आ जाए कि मेरी पॉकेट में जो कुछ है वो मेरा है, तो फौरी तौर पर जमीन पर हाथ लगाकर कहा करें, आए शैतान दूर हो। फौरी तौर पर कहा करें, मैं तो यही करता हूं। 5 दिरहम भी हैं जेब में और शैतान ये कहता है यार तेरे को तो आखिर में भी 5 दिरहम ने। मैं कहता हूं आए शैतान दूर हो। ये 5 दिरहम इसलिए हैं क्योंकि मेरे खुदावंद का बरकत वाला हाथ मेरे वॉलेट पर और मेरी पॉकेट पर है। तो मैं क्या कहने लगा हूं, जावेद सुन ले बेटा आशिक, हम रुपया पैसा लगाकर लोगों को इस्तेमाल ना करें, कभी ना करें। आज दुनिया में यही होता है। डायसेशन की सतह पर, चर्चेस की सतह पर, मुल्क की सतह पर, सियासी दुनिया में क्या ये नहीं हो रहा? आज रुपया पैसा लगाकर इंसानों को इस्तेमाल किया जाता है। मैं खुदा का खादिम होने के नाते आज आपको तलकीन करूंगा, इंसानों पर पैसा लगाकर उन्हें खुदावंद के लिए तैयार करें। इंसानों पर पैसा लगाकर, अगर पैसा ही लगाने का शौक है तो फिर उन पर लगाएं जो सनबडी स्टूडेंट्स हैं, उन क्रिश्चियन एनजीओज पर लगाएं जो दिन रात खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, उन अशायती इदारों की तरफ लगाएं जो दिन रात किताबें प्रिंट कर रहे हैं, बाइबल सोसाइटी पर लगाएं जो दिन रात बाइबल मुकद्दस को प्रिंट करके मुझ तक आप तक पहुंचा रहे हैं। पैसे को इंसानों के हवाले से इस तरह इस्तेमाल ना करें कि वो आपके लिए इस्तेमाल, बल्कि रुपए पैसे को इस तरह इंसानों के लिए इस्तेमाल करें कि वो आपके रब खुदावंद के लिए इस्तेमाल। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए बेटे आशिक के साथ मिलकर खुदावंद से दुआ करें और फिर दुआए रबानी और बरकत के कलमे के साथ खुदा के घर से रुखसत हों। है हमारे प्यारे जिंदा आसमानी बाप, खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो हमने सुना था। सचमुच खुदावंद तेरे पाक कलाम में लिखा है खुदावंद कि सोना तेरी है, चांदी तेरी है खुदावंद, ये जमीन तेरी है खुदावंद, हम तेरे हैं खुदावंद। खुदावंद हम कभी इस चीज पर फख्र ना करें या गरूर ना करें कि हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं, या हमारे घर कितने बड़े हैं, या हमारे पास गाड़ियां कितनी हैं, क्योंकि सब कुछ खुदावंद सचमुच ये तेरा दिया हुआ है खुदावंद। हम जब इस दुनिया में आए थे कुछ नहीं लेकर आए थे खुदावंद, और खुदावंद अब जब हम अपनी नेमतों पर नजर करते हैं खुदावंद तो सचमुच खुदावंद हमारे दिल शुक्रगुजारी से भर जाते हैं खुदावंद कि खुदावंद तूने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है खुदावंद जो कि गिनती से बाहर है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। और खुदावंद आज का पैगाम यहाँ बैठे एक एक शख्स के दिल में खुदावंद घर कर जाए खुदावंद, एक एक लफ्ज खुदावंद सीमेंट हो जाए खुदावंद हमारे दिलों के अंदर खुदावंद, और ये 100 गुना फल हमारी जिंदगियों में लेकर आए खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद फिर से खुदावंद इस खूबसूरत पैगाम के लिए। ये सब कुछ मानता और पा लेता हूँ उसी यीशु के प्यारे नाम में, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल
हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदावन तू रहम कर, भाई मसीह तू रहम कर, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में। आमीन।